Good morning student. Today we are going to attend economic class. In the last video we have started the chapter number 13 of part A. Name of the chapter is index number. Recap of the last video. In the last video we have done the define of index number and then we have done the method. In the method we have done first method, that is simple index number. Under simple index number you have done simple aggregative method and simple average of price relative method. Now formula of simple aggregative method is P01. P01 means index number is equal to summation of P1 upon P summation of P0 into 100. Now next simple average of price relative method, that formula is P01 is equal to index number is equal to summation of P1 upon P0 into 100 upon N. N means number of the item. And next we have done weighted index number. Under the weighted index number we have done weighted average of price relative method. The formula is P01, that is index number, summation of RW upon summation of W. Now topic covered in this video that we are going to do, that is weighted aggregative method and consumer price index. So student, we are going to start first from the weighted index number. Under the weighted index number there are two method. First is weighted average of price relative method and second is weighted aggregative method. Weighted aggregative method. Now in the last video we have done weighted average of price relative method. Now we are going to start our method, that is weighted aggregative method. Under the weighted aggregative method there are three weighted aggregate method are under the three type. First is Laspeyres, then Fisher and then Fisher. Now what is the formula of Laspeyres? Laspeyres P01 is equal to, इसमें आपको क्या याद रखना है, एक वर्ड लर्न करना है, दैट इज़ 1000. क्या लर्न करना है आपने? 1000. नाउ यू कैन फ्रेम योर फॉर्मूला विद योर ओन, दैट इज़ P01 इज इक्वल टू सिग्मा समीशन पी क्यू. आपने क्या लिख देना? पी क्यू अपॉन समीशन पी क्यू इंटू 100. क्या लिखना है? समीशन पी क्यू अपॉन समीशन पी क्यू इंटू 100. अब आप 1000 आपने यूज़ करना है. क्या करना है? 1000. ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका? लेस्पेयर्स मेथड का. लेस्पेयर्स मेथड का फॉर्मूला क्या है? समीशन P1 Q0 मल्टीप्लाई अपॉन समीशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. P1 आपको पता ही है करंट ईयर, Q0 आपको पता है बेस ईयर. नाउ P1 क्या आपका? प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर. नाउ प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू 100. दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ लेस्पेयर. आपने क्या याद रखना है? 1000. अब पैस्टर में भी आपने क्या लर्न करना है? 1101. क्या लर्न करना है? 1101. नाउ व्हाट इज अ फॉर्मूला? दैट इज, नाउ फॉर्मूला इज 1101. नाउ वी आर गोइंग टू फ्रेम द फॉर्मूला. आपने वैसे ही क्या लिखना है? पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू इंटू 100. अब आपने क्या लिखना है? 1101. दैट इज 1101. बन गया आपका फॉर्मूला पैस्चर्स का. किसका फॉर्मूला बन गया? पैस्चर्स का. क्या बना? समीशन ऑफ P1 Q1 समीशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100. This is the formula of Pasteur. In the Laspeyres you have to learn 1000. In the Pasteur's method you have to learn 1101. इससे आपका फॉर्मूला इजीली फ्रेम हो जाएगा. Now next method is Fisher method. Fisher method में आपने क्या है? P01 that is index number. P01 that is index number is equal to whole under root. Whole under root में क्या है? क्या लिखना है आपने? लेस्पेयर्स मल्टीप्लाई बाय पैस्चर इंटू 100. कैसे? आप देखो पहले लेस्पेयर का फॉर्मूला क्या था आपका? पी क्यू सिग्मा पी क्यू
आपने क्या लर्न किया था 1000 1 0 0 0, ये किसका फॉर्मूला बन गया लेस्पेयर मल्टीप्लाई बाय अब किसका लिखना आपने फॉर्मूला पैस्चर सिग्मा P1 Q1 समीशन P0 Q1। अब बाहर अंडर रूट से बाहर क्या लिखना आपने 100, ये बन गया आपका फिशर मेथड मतलब लेस्पेयर का फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय पैस्चर का फॉर्मूला और वो दोनों फॉर्मूले किस में कर देने आपने होल अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 100। दिस इज कॉल्ड योर फिशर मेथड। ये तीनों मेथड किसके अंडर आते हैं वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। वेटेड एग्रीगेट मेथड के अंदर 3 मेथड्स आते हैं कौन से लेस्पेयर्स पैस्चर्स फिशर। लेस्पेयर्स के लिए आपको क्या याद करके रखना है 100,000 और पैस्चर्स के लिए आपको क्या याद करके रखना है 1101। पी क्यू सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा पी क्यू ये तो कॉमन है। अब आपने लेस्पेयर में यहाँ पे उसके नीचे क्या डाल दोगे 1000 और पैस्चर में क्या डाल दोगे 1101 इंटू 100। इजीली आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू द वन सम। अब आपको सम इस तरह से दिया होगा आइटम्स ABCD और बेस ईयर क्वांटिटी दी हुई है, इसका मतलब बेस ईयर क्वांटिटी दी हुई है तो ये क्या होगी आपकी Q0। प्राइस दिया हुआ है ये क्या बेस ईयर ये तो P0। अब क्वांटिटी दी हुई है आपको करंट ईयर की तो ये क्या हो गया Q1। प्राइस दिया हुआ है करंट ईयर का तो क्या ये क्या हो गया P1। आपको इसी तरह से सम दिया हुआ आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ लेस्पेयर्स मेथड। अब लेस्पेयर्स मेथड के लिए आपको फॉर्मूला आपको पता ही है कौन सा होता है P01 दैट इज इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समीशन P1 Q0 अपॉन P0 Q0 इंटू 100। मतलब करंट प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर अपॉन समीशन ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर इंटू 100। अब आपको इसके निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको पहले क्या चाहिए P1 Q0 मतलब P1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप Q0 से, वो क्या बन जाएगा आपका P1 Q0 मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 72 20 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 80। अब आपको क्या चाहिए P0 Q0 मतलब आप किससे P0 को किससे मल्टीप्लाई करोगे Q0 से तो आपका क्या निकल आएगा P0 Q0। जैसे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 4 मल्टीप्लाई बाय 15 ये आपने कर लिया सारा, उसके बाद आपने इसका टोटल कर देना है। P0 Q0 कितना आ रहा है 187 और P1 Q0 कितना आ रहा है 235। नाउ पुट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला दैट इज 235 अपॉन 87 इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा। ये कौन सा मेथड किया बच्चों हमने लेस्पेयर्स मेथड। नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर नेक्स्ट मेथड दैट इज पैस्चर्स मेथड। अब इसी तरह आपको वही सेम क्वेश्चन है, आपको क्या है आइटम्स दी हुई है क्या वही करंट ईयर और बेस ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी दी हुई है। अब आपको क्या निकालना है व्हाट इज अ फॉर्मूला समीशन P1 Q1 अपॉन समीशन P0 Q1 इंटू 100। अब आपको क्या चाहिए पहला P1 Q1 मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है P1 को Q1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा P1 Q1। जैसे 12 मल्टीप्लाई बाय 8 20 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आपका P1 Q1 आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए P0 और Q1। अब P0 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने Q1 से तो आपका क्या आ जाएगा P0 Q1। P0 फॉर एग्जांपल 10 मल्टीप्लाई बाय 8 15 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आपका क्या आ गया P0 Q1 दैट इज 233। नाउ फॉर्मूला के आपकी क्या वैल्यू आई P1 Q1 की 250 P0 Q1 की कितनी आ गई 233। Now we are going to put this values in our formula, then you are going to get the answer. Now last method is Fisher method. In the Fisher method, the formula will be the same. Which formula? Lespiers multiply by Pasteurs whole under root multiply by 100. अब Lespiers का formula जैसे लेस्पेयर के फॉर्मूले में आपने वैल्यू पहले ही पुट की हुई थी क्या थी 235 अपॉन 187। पैस्चर्स में आपने क्या की हुई थी 250 अपॉन 233। अब आपने इसको डिवाइड करने के बाद दोनों को डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद इसका अंडर रूट निकाल लेना। हमारा अंडर रूट कितना है 1.1612। अब आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना 100 से तो आपका क्या आ जाएगा फिशर मेथड। आपका क्या आ गया फिशर मेथड। नाउ we have done the 3 method which one Lespiers, Pasteurs, Fisher.
फिशर मेथड किसका कॉम्बिनेशन है, लेस पेयर्स और बेस्ट पेयर्स का, बस फ़र्क क्या है, उसको होल अंडर रूट करके और जो अंडर रूट के बाहर आपने क्या लेना है, 100. So this we have done weighted aggregative method. Which method we have done? Weighted aggregative method. अनवेटेड एग्रीगेटिव मेथड. वेटेड एग्रीगेट मेथड के अंदर आपने 3 मेथड्स करे हैं. कौन कौन से करे, लेस पेयर्स, नेक्स्ट बेस्ट पेयर्स और नेक्स्ट फिशर. लेस पेयर्स में आपने क्या याद करना है, 1000. बेस्ट पेयर में क्या याद करना है, 1101. और फिशर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेस पेयर्स और बेस्ट पेयर्स होल अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 100. This is your weighted aggregative method. So students, we have completed the weighted index number. Now we are going to start our new topic, that is consumer price index. Now we are going to start our next topic, that is consumer price index. Consumer price index का दूसरा नाम क्या है, cost of living index number. अगर आपको पेपर में cost of living index number आ गया, that means it is consumer price index. Under this there are 2 methods, that is aggregative expenditure method and next is family budget method. कितने मेथड हैं, 2. कौन सा पहला, aggregative expenditure method and second is family budget method. Now we are going to start our first method of CPI. CPI means consumer price index, that is aggregative expenditure method. This is very easy method. In this question you are going to given the items और आपको क्या दिया होगा, Q0, P0, P1. Q0 का आपको बताइए, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर. आपको क्या करना है, आपने लेस पेयर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. लेस पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ P1 Q0 समीशन ऑफ P0 Q0 इंटू 100. आपको P0 Q0 चाहिए, आपने क्या करना है, P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, P0 Q0 मतलब 75 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 20. इसी तरह अब आपका क्या आ जाएगा, P0 Q0. अब आपको क्या चाहिए, P1 Q0. P1 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, Q0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, P1 Q0. फॉर एग्जांपल 125 मल्टीप्लाई बाय 2. अब आप इसी तरह मल्टीप्लाई कर लोगे तो फिर आप उसको क्या कर दोगे, प्लस, वो क्या बन जाएगा आपका P1 Q0 और उसको भी प्लस कर दोगे, क्या कहते हैं, P0 Q0. Now CPI is equal to summation P1 Q0 upon summation P0 Q0 into 100. अब इसमें आपने वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 132.12. अब कौन सा मेथड किया हमने, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड. दिस इज़ वेरी इजी मेथड. आपने क्या, किसका फॉर्मूला याद रखना है, लेस पेयर्स का, जो आपने अभी पीछे किया है. सो वी हैव कंप्लीटेड द एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड. नाउ लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर इज, दैट इज फैमिली बजट मेथड. फैमिली बजट मेथड. अंडर द फैमिली बजट मेथड अब आपको क्या दी होगी, आइटम्स. आपको Q0 दिया होगा, P0 दिया होगा, P1 दिया होगा. क्या दिया होगा, Q0, P0 और P1. आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, R फाइंड आउट करना है. आपने पिछली वीडियो में, लास्ट वीडियो में आपने देखा था R कैसे फाइंड आउट करना है. वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ R, दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100. P1 अपॉन P0 इंटू 100. प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100. ये क्या बन जाएगा आपका, क्या निकल आएगा आपका R. अब आपको इसमें W नहीं दिया हुआ, आपको W निकालना है. W निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P0 को Q0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, वो आपका क्या निकल जाएगा, W. अब क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा था W दिया हुआ था, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कैसे W निकालना है. अब आपको W नहीं दिया हुआ, इसमें आपको W निकालना है. आपने क्या करना है, P0 मल्टीप्लाई बाय Q0, दैट विल बिकम योर W. अब उसको आपको W भी निकल जाएगा. अब आपको क्या करना, R, आपको क्या चाहिए, RW. अब R को किससे मल्टीप्लाई करोगे, W से, तो आपका क्या निकल जाएगा, RW. अब आपने W को टोटल कर देना है और RW का टोटल कर देना है. आपका आंसर आ जाए, क्या फॉर्मूला है, CPI. CPI मीन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समीशन ऑफ RW अपॉन समीशन ऑफ W. आपने इसमें वैल्यू पुट करके आपका क्या आ जाएगा, आंसर. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. क्या दिया होगा, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर एंड प्राइस ऑफ करंट ईयर. आपको क्या फाइंड आउट करना है, R. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ R, दैट इज P1
अपॉन P0 इंटू 100 W का फॉर्मूला क्या है P0 Q0। अगर आपको W गिवन है वेल एंड गुड है, अगर नहीं दिया हो तो आपको निकालना पड़ेगा। तो W निकालने का फॉर्मूला क्या है P0 Q0। फिर आपको क्या चाहिए RW, R को W के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा RW। व्हाट इज़ अ फॉर्मूला समीशन RW अपॉन W, आपका आंसर आ जाएगा 132.11. So student, we have completed the numerical sums of chapter 13. In the end we have done the three type of sums in this chapter, that is simple index number. सिंपल इंडेक्स नंबर के अंदर भी आपने दो मेथड के लिए, कौन सा सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। अब वेटेड इंडेक्स मेथड के अंदर भी आपने दो मेथड करे हैं, कौन कौन से करे हैं, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर भी आपने दो मेथड करे हैं, कौन सा की है, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड। बाय दिस योर चैप्टर 13 हैज़ बीन कंप्लीट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर of stats, that is chapter number 11, and we are going to do first numericals of this chapter.